Namaskar friends, myself Jaivir Shah. I'm having 12 years of experience in teaching, 2 years of online teaching experience and 10 years of offline teaching experience. I'm assistant professor at Virayathan Institute of Engineering in Mechanical Engineering Department, and today we are going to discuss about nanomaterials and specifically synthesis of nanomaterials. What do you mean by synthesis of nanomaterials? अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो नैनो मटेरियल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं. So this lecture is going to be in English, means Hindi and English, majority part in English, but some part of it in Hindi. When I am unable to get words from the English, then I am using Hindi as a second language. About my qualification, I am BE Mechanical, ME Automobile, PhD pursuing candidate, also YouTuber, an influencer, and Indian patent agent, and my patent agent number is 3339. Now let's discuss about this topic of nanomaterials. So what is the nanomaterial? Let's first define the nanomaterials and then go through the synthesis process of it. So the answer of the first question is written here, and that is nanomaterials having unique properties arising from their nanoscale dimension. So what is nanoscale? 10 raised to minus 9 meter, that is called 1 nanometer. Even a hair of my head is of 10 raised to minus 6 meter of thickness. So the nanomaterials are a far lesser dimension than the hair. And for such kind of reference, what is the nanoscale, how these nanomaterials are defined, two introductory lecture already completed, and you can find out the these two lectures at the end of this video in the end screen. So I request you to go through this video in order to understand the synthesis process in a better manner. Okay, so what you can do, अभी ये लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद में जो एंड स्क्रीन आ रही है वहां पर ये दो वीडियो रिफ्लेक्ट होंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा. अभी हम देखते हैं कि नैनोमटेरियल्स, सेकंड पॉइंट, नैनोमटेरियल्स विथ फास्ट आयन ट्रांसपोर्ट आर रिलेटेड also to nanoionics and nanoelectronics. यहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि फेरोइलेक्ट्रिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो अगर क्लस्टर हो, यानी सभी उनके पार्टिकल्स हम साथ में रखें, तो जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, अगर हम उसको नैनो स्केल बना दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेट करेगा, मींस कंडक्शन नहीं करने देगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देगा. ऐसी प्रॉपर्टी भी बन सकती है. और कोई कोई मटेरियल जो मैग्नेटिज्म रखते हो, उसको अगर नैनो मटेरियल में क्रिएट किया जाए तो वो मैग्नेटिज्म का अपना एबिलिटी छोड़ सकते हैं, या फिर जो मैग्नेट ना हो वो मैग्नेटिज्म की एबिलिटी उनमें इंप्लीमेंट हो सकती है. So such example already discussed in the previous two lectures. So I request you to go through that lecture. This is the general brief introduction about nanoparticles and nanoscale. And nanoscale of the materials can also be used for bulk application. Like what kind of bulk application? Nanomaterials are sometimes used in solar cells, which combats the cost of traditional solar silicon cell. हमें पता है कि ड्यू टू द करंट एनर्जी सोर्स, जो सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स बन के आ रहा है जो है सोलर. So एज पर द करंट सिनेरियो, अगर कंप्लीट ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में थर्मल पावर प्लांट के बाद सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है जहां से एनर्जी रिलीज हो सकती है वो है सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में. और सोलर एनर्जी में
जो सिलिकॉन मटेरियल होता है जिससे प्लेट्स बनती है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, वो मटेरियल सबसे महंगा होता है। तो हमें अगर उस मटेरियल को रिप्लेस करना है तो हम उसको नैनो मटेरियल से रिप्लेस कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि जो आयन हमें ऐसा लग रहा है कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी मींस उससे हम सोलार सेल्स नहीं बना सकते हैं, मगर उसके अगर नैनो पार्टिकल्स कर दिए जाए तो वहां से हम सोलार एबिलिटी उसमें देख सकते हैं, और वो एबिलिटी वाले नैनो पार्टिकल्स को कलेक्ट करके हम सोलार सेल्स भी बना सकते हैं। तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम हो सकती है, और ऐसा हो भी रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो नैनो सेल्स, नैनो मटेरियल्स अभी यूज हो रहे हैं सोलार सेल्स को बनाने के लिए, और वो भी वही यूज हो रहे हैं जो ऑलरेडी सोलार सेल्स में यूज नहीं होते हैं, सिलिकॉन्स नहीं है, मगर दूसरे एटम्स हैं, दूसरे मटेरियल से बनाए गए नैनो मटेरियल्स जो बहुत ही कॉस्ट में चीप भी रहते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं सोलार सेल्स जो ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं। सो दिस आर दी पोटेंशियल ऑफ दी नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए ये तो बहुत ही क्लियर होगा आपके दिमाग में अभी, कि जो भी चीज अभी आप देख रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक अगर नैनो प्लास्टिक अगर बल्क में, मैं कहूँ प्लास्टिक अगर बल्क में विद इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेट करता है, तो प्लास्टिक नैनो पार्टिकल्स में हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करे। So such kind of properties are observed and then nanotechnology is found. Okay, let's talk about the next slide. Now there are two approach. One is top-down approach and another one is bottom-up approach. Means synthesis are done by two approach. One is top-down and another is bottom-up. Top-down में क्या करते हैं हम? Top-down के अंदर एक बल्क कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे कि एक लोहा है तो लोहे को ले लिया, आयरन कोर को ले लिया, आयरन कोर को फिर हम तोड़ेंगे, पाउडर के फॉर्म में क्रिएट करेंगे, और फिर पाउडर फॉर्म को हम नैनो पार्टिकल्स में क्रिएट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। आज हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो कौन सी मेथड है, टॉप डाउन है या बॉटम अप, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजना है मेथड का नाम, और टॉप डाउन है या बॉटम अप है वो दोनों चीज भेजनी है। बॉटम अप में हम क्या करेंगे, बॉटम अप में हम पहले हमारे पास एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, कोई भी मटेरियल्स के हो सकते हैं, उन एटम्स को हम क्लस्टर में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसको चिपकाएंगे, सिंपल अगर सिंपल भाषा में, सिंपली भाषा में समझो तो, और फिर वहां से हम नैनो पार्टिकल्स बनाएंगे। तो बॉटम अप अप्रोच भी बहुत सिंपल हो गया, और टॉप डाउन अप्रोच भी आप समझ चुके हैं। टॉप डाउन अप्रोच में जो मटेरियल होता है उसको तोड़ तोड़ के नैनो पार्टिकल बनाना है, और अगर नैनो पार्टिकल से भी कम थिकनेस वाले अगर हमारे पास एटम्स है तो उसको जोड़ जोड़ के अगर हम नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं तो उसे हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस तो क्लियर हो गई, और सिंथेसिस यानी क्या वो भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। नेक्स्ट, टोटल 3 मेथड्स ऑफ सिंथेसिस है। एक तो है फिजिकल मेथड, दूसरी है केमिकल मेथड, तीसरी है बायोलॉजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में दो मेथड्स हैं, एक तो है मैकेनिकल मेथड एंड दूसरी है वेपर मेथड। जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मेथड। हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मेथड अंडर फिजिकल सिंथेसिस के अंदर, ये किसकी मेथड है, तीनों मेथड है सिंथेसिस की, लिखा भी हुआ है, मैं फिर से लिख दूं, सिंथेसिस की 3 मेथड्स है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। एंड उसके अंदर भी हम फिजिकल के अंदर 2 मेथड है, मैकेनिकल एंड वेपर, और वहां पर हम मैकेनिकल के अंदर हाई एनर्जी बॉल मिलिंग वाली मेथड देखने वाले हैं आज। दूसरी मेथड है मैकेनिकल के अंदर मेल्ट मिक्सिंग। वेपर के अंदर कितनी है, टोटल 5 मेथड्स है। वन है फिजिकल वेपर डिपोजिशन, सेकंड लेजर एब्लेशन, स्पुटर डिपोजिशन, इलेक्ट्रिक आर्क डिपोजिशन एंड आयन इम्प्लीमेंटेशन। लेट्स डिस्कस अबाउट द हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मेथड। तो इस मेथड के अंदर ये सिंपलेस्ट मेथड है, ये सिंपलेस्ट मेथड है ऑफ मेकिंग नैनो पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ मिल्स यूज होती है, मिल्स, चक्की, आटा, याद आता होगा।
तो वैसे ही करना है, कुछ इसमें कोई ज्यादा बात अलग नहीं है, डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर हम नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं और उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सो प्लेनेटरी, वाइब्रेटरी, रोड एंड टम्बलर, इतने टाइप के मिल्स यूज होते हैं जहां पर नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। चलो थोड़ा सा और डिप में जानते हैं कि ये हाई एनर्जी बॉल मिलिंग जो मैकेनिकल मेथड्स के अंदर अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल सिंथेसिस, फिजिकल सिंथेसिस में मैकेनिकल मेथड के अंदर हाई एनर्जी बॉल मिलिंग में होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। ओके, कंसिस्ट ऑफ कंटेनर फिल्ड विथ हार्डन्ड स्टील और टंगस्टन कार्बाइड बोल्स, एक कंटेनर है जिसके अंदर हार्डन्ड स्टील रखे गए हैं या फिर टंगस्टन कार्बाइड बोल्स रखे गए हैं। मटेरियल्स ऑफ इंटरेस्ट इज फेड एज फ्लैक्स, जो मटेरियल हमारे इंटरेस्ट का है जिसमें से नैनो पार्टिकल्स बनाना है उसको फ्लैक्स के तौर पे डाला गया है। 2:1 मास रेशियो ऑफ द बोल्स टू मटेरियल, कितना मटेरियल डाला गया? अगर बोल आप समझ लीजिए 10 केजी के 5 बोल रखे गए हैं तो 5 केजी का फ्लैक्स डाला गया है मटेरियल का। कंटेनर में बी फिल्ड विथ एयर और इनर्ट गैस, कंटेनर को एयर के साथ भी मिक्स किया जा सकता है या फिर इनर्ट गैस भी डाला जा सकता है जो नैनो पार्टिकल बनाने में मदद करे। कंटेनर्स आर रोटेटेड एट हाई स्पीड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के साथ में उसको रोटेट किया जाता है एट अ हाई स्पीड, हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है। ओके, मटेरियल इज पोज्ड टू द वॉल्स एंड प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल्स, मटेरियल को वॉल के ऊपर जैसे ही घूमेगा तो घूमने से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा और जो मटेरियल्स है वो चिपक जाएंगे वॉल के ऊपर और उसी वॉल पे रोलर बॉल्स जो होते हैं, बॉल्स यानी गेंद जो होती है मेटल्स की, वो घूमने लगेगी, वो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने लगेगी। सो दिस आर द प्रोसेस। मैकेनिकल मिलिंग, मैकेनिकल मिलिंग में देखते हैं, चलिए। नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम मैकेनिकल एक्ट्रीशन आर प्रोड्यूस्ड बाय टॉप डाउन प्रोसेस, आपको शायद आंसर भी मिल गया प्रोसेस का, लिख दीजिएगा, टॉप डाउन ही कहेंगे ना, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स है उसको तोड़ तोड़ के नैनो पार्टिकल बनाना है। फ्लैक्स भी होते हैं, फ्लैक्स बड़े होते हैं, ये एक फ्लैक्स है, ये एक फ्लैक्स है, आप समझिए उसका तो पाउडर ही होगा, मगर पाउडर में भी आप देखिए 10⁻⁹ मीटर तक हमें पहुंचाना है, तो अगर छोटे से भी फ्लैक्स लिए वो भी बहुत बड़ा क्लस्टर हुआ, वो बहुत बड़ा एटम हुआ इन केस ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर? So nanoparticles formed in a mechanical device generally referred to as meal, जिस डिवाइस के अंदर नैनो पार्टिकल फॉर्म होते हैं उसको मिल कहा जाता है, इन विच एनर्जी इज इम्पार्टेड टू अ कोर्स ग्रेन मटेरियल टू इफेक्ट अ रिडक्शन इन पार्टिकल साइज। तो ये कोर्स ग्रेन मटेरियल या फिर इसको फ्लेक्स कहते हैं, उसके ऊपर जब बॉल गिरेगी तो वो टुकड़े हो जाएंगे, फिर वापस बॉल उसके ऊपर गिरेगी तो और टुकड़े हो जाएंगे और तब तक टुकड़े होते रहेंगे जब तक वो नैनो पार्टिकल्स फॉर्म ना कर दें। क्लियर? Let's move further. The fundamental principle. Now, principle of milling. The fundamental principle of size reduction in mechanical accretion device lies in the energy imparted to the sample during impact between the milling media. कितनी एनर्जी से, कितने फोर्स से बॉल उस फ्लैक्स को क्रश करता है उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी फाइन पार्टिकल्स हमारे पास प्रोड्यूस होगी। These models represent the moment of collision during which particles are trapped between two colliding balls within a space occupied by mass of powder particle. दो बॉल्स के बीच में भी पार्टिकल यानी जो पाउडर है वो उनके बीच में भी रहेगा और वो दोनों बॉल उसको रोटेट होने के साथ साथ पाउडर फॉर्म में, नैनो पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो ये रहा एक बोल, ये फर्स्ट बोल आप समझ लीजिए, ये एक बोल रहा, ये डाउनवर्ड ये दूसरा बोल है और ये सिलेंडर मिल की सरफेस है जहां पर ये पूरा पाउडर है
और उन दोनों के बीच में देखिए ये क्रशिंग हो रहा है मटेरियल का, और यहां पर नैनो पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं। आई होप आप ये इसको समझ पा रहे होंगे, भले ही ये पूरा डायग्राम ना समझे, मगर ये दोनों बोल्स आप देख पा रहे होंगे, और उसके बीच में जो पाउडर फॉर्म में हमारा जो मटेरियल रखा गया है, जिसमें से हमें पाउडर प्रोड्यूस करना है, नैनो पार्टिकल प्रोड्यूस करना है, वो रखा गया है। तो यहाँ पर नैनो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। कहां पर होंगे? दोनों के बीच में जो जगह नहीं है वहां पर जो क्रश हो रहा है छोटा सा पार्टिकल, वो नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग। ओके, ये है बॉल मिलिंग मशीन, और यहां पर 4 फिगर भी दी गई है। जब इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा गया तो Bi4 Ti3O12 को मिल करने के बाद आफ्टर 3 आवर, 3 घंटे तक मिल करने के बाद ये फिगर दिखाई दे रही थी, ए नंबर की फिगर दिखाई दे रही थी। आफ्टर 3 आवर्स ऑफ मिलिंग, आफ्टर 9 आवर्स ऑफ मिलिंग, यहां पर लिखा हुआ आफ्टर 9 आवर्स ऑफ मिलिंग, इस तरीके का हमें देखिए फाइन पाउडर मिल रहा था। अब देखिए आफ्टर 15 आवर ऑफ मिलिंग, ये पाउडर यानी ये स्ट्रक्चर जो है, देखिए ये एटम्स दिखाई दे रहे थे, यहां पर भी एटम्स थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे। आफ्टर 15 आवर्स ये एटम्स कहीं नहीं दिखाई दे रहे, यानी बहुत ही फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, एटम्स नहीं दिखाई दे रहे, तो नैनो पार्टिकल्स फॉर्म हो चुके हैं। एंड आफ्टर 20 आवर्स ऑफ मिलिंग, वापस देखिए कितना फाइन सरफेस, अब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी यहां पर जितनी देर तक मिलिंग की जाएगी उतना ही क्रशिंग हो रहा है। यहां पर लिखा भी हुआ है, लेंथ आ गई है 1 माइक्रोमीटर में, इसको देखा गया है 1 माइक्रोमीटर स्केल पे इसको दिखा गया है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम दिस लेक्चर सिंथेसिस। आज हमने पढ़ा क्या? सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। उसके अंदर कितनी मेथड थी? 3 मेथड थी। कमेंट में लिख के भेजिए कौन कौन सी 3 मेथड्स है। और उसके अंदर फर्स्ट मेथड जो फिजिकल मेथड थी, उसके अंदर की कौन सी मेथड में हमने आज का लेक्चर पढ़ा और समझा? तो प्लीज ये कमेंट कर दीजिएगा तीनों मेथड के नाम, और फिजिकल मेथड के अंदर आज कौन सी मेथड थी उसको आपने समझा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मैं डाउट्स को सोल्व करने में पसंद करता हूं, प्लीज कमेंट कीजिएगा जो भी ना समझ में आए, ताकि मुझे भी आगे अच्छा पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।